சுரா கைட் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கான புதிய பதிப்பு. அதிக மதிப்பெண் பெற சுரா கைட் அனைத்து புத்தக கடைகளிலும் கிடைக்கும். ஆல்சோ அவைலபிள் ஆன் Amazon, Flipkart and surabooks.com. தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய், இதயம் நல்லெண்ணெய். இனிமே கண்ணை மூடிட்டு கடலை எண்ணெய் வாங்கலாம். ஏன்னா மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு. 7 கட்டங்களாக அறிவிக்கப்பட்ட லோக்சபா தேர்தலில் 6 கட்ட ஓட்டுப்பதிவு முடிந்துள்ளது. 7வது மற்றும் இறுதிக்கட்ட ஓட்டுப்பதிவு ஜூன் 1 நடக்கிறது. 4ஆம் தேதி ஓட்டுகள் எண்ணப்பட்டு ரிசல்ட் வெளியாகிறது. இந்நிலையில் பிரதமர் மோடி இதுவரை தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் முன்வைத்த முக்கிய அம்சங்கள், அதற்கான காரணங்கள் குறித்து விளக்கம் அளித்தார். இந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் SC/ST மற்றும் OBC-க்களுக்கான இடஒதுக்கீடு குறித்து அதிகம் பேசப்பட்டது. எதிர்க்கட்சிகளின் சூழ்ச்சியை மக்கள் மத்தியில் வெளிப்படுத்தவே அது பற்றி நான் அதிகம் பேச வேண்டியிருந்தது. அரசியல் சாசனம் அளிக்கும் உரிமைகள் பற்றி மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். காங்கிரஸ் ஆட்சியில் அரசியல் சாசனம் எப்படியெல்லாம் மறைமுகமாக உடைக்கப்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். SC/ST மற்றும் OBC மக்களுக்கு அரசியல் சாசனம் இடஒதுக்கீட்டு உரிமை அளிக்கிறது. ஆனால் மைனாரிட்டி என்ற ஒற்றை வார்த்தையில் அவர்களின் உரிமைகளை பறிக்கும் செயலில் காங்கிரஸ் ஈடுபட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் ஒரே இரவில் ஆயிரக்கணக்கான கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மைனாரிட்டி அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது. அப்படி வழங்கியதன் மூலம் அந்த நிறுவனங்களில் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பில் இடஒதுக்கீட்டு முறை முடிவுக்கு வந்தது. அந்த வகையில் நாடு முழுவதும் 10,000 கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மைனாரிட்டி அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டதை அறிந்து அதிர்ந்து போனேன். பல்கலைக்கழகங்களுக்கு கூட மைனாரிட்டி அந்தஸ்து கொடுத்துள்ளனர். டெல்லியில் உள்ள ஜாமியா மில்லா பல்கலைக்கழகம் இதற்கு ஓர் உதாரணம். இவர்கள் விளையாட்டுத் துறையிலும் மைனாரிட்டி கோட்டா என்று கூறி விளையாட்டு வீரர்களின் கனவுகளை தகர்க்கின்றனர். பஞ்சாப், மேற்கு வங்கம், உத்தரப்பிரதேசம் என எல்லா மாநிலங்களைச் சேர்ந்த வீரர்களும் உடலை வருத்தி விளையாட்டில் சாதிக்க துடிக்கின்றனர். அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு அவர்களை தேர்வு செய்யும் போது மைனாரிட்டி கோட்டா என கூறி அவர்களின் வளர்ச்சி தடுக்கப்படுகிறது. கல்வி, வேலை வாய்ப்பு, விளையாட்டு தவிர கான்ட்ராக்டுகள் வழங்குவதிலும் மைனாரிட்டி முறை கடைபிடிக்கப்படுவது எந்த வகையில் நியாயம்? இதன் மூலம் மக்களின் உயிருடன் விளையாடும் செயலில் காங்கிரஸ் ஈடுபட்டது. இதற்கெல்லாம் மேலாக காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையை பார்த்தால் நன்றாக புரியும். அதனால்தான் அதை முஸ்லிம் லீக்கின் தேர்தல் அறிக்கை என்றேன். அதற்கு அவர்கள் விளக்கம் அளித்திருந்தால் அன்றோடு சர்ச்சை முடிந்திருக்கும். ஆனால் அவர்கள் மௌனம் சாதித்தனர். விஷயத்தை திசை திருப்ப பொய் கூறினர். அதனால்தான் அரசியல் சாசனம் வழங்கும் இடஒதுக்கீட்டு முறையை மக்கள் அறியும்படி அதிகம் பேச வேண்டியிருந்ததாகவும் பிரதமர் மோடி கூறினார். मुझे नहीं करना पड़ रहा है, मुझे सचेत करना है मेरे SC, ST, OBC और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं. और चुनाव एक ऐसा समय है कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है उससे देशवासियों को मुझे जागरूक करना चाहिए. और इसलिए मैं आग्रहपूर्वक जनता जनार्दन को समझा रहा हूँ, क्योंकि ये 2 चीज़ें हो रही हैं. एक, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है. संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए. अब मुझे याद है, मैंने हाउस में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि PSU का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं. अब रियलिटी तो है नहीं, गप्पाजी कर रहे थे. लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं. इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया. माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया.
अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। अब दिल्ली में ही जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है उसको उन्होंने माइनॉरिटी बनाते, उसमें सारे आरक्षण खत्म हो गए। एडमिशन में भी नहीं, नौकरी में भी नहीं। और बाद में तो चीजें उभर करके आई कि करीब करीब 10,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको इस प्रकार से आरक्षण के जो SC, ST, OBC का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है, संविधान की पीठ में छोड़ा भोंका दिया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस सपने से ये व्यवस्था खड़ी की थी उसको इन्होंने वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया है। तो ये एक चिंताजनक बातें मेरे सामने जब आई तब मुझे लगा कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं देश को अवगत। इतने में इनका मैनिफेस्टो आया। इस मैनिफेस्टो ने और चौंका दिया और इसलिए मैंने पहला मैनिफेस्टो पढ़ देखते ही मेरा पहला कमेंट था कि ये मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छवि है। तो 2-3 दिन तो उनको लगा कि इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही बात खत्म हो जाएगी। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मैं एक एक चीज खोलने लगा। जैसे इस देश में वो ये कहें कि हम खेलकूद में भी माइनॉरिटी के लिए कोटा फिक्स करेंगे। आज पंजाब के मेरे बच्चे जो खेल जगत के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बंगाल के मेरे नौजवान फुटबॉल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवान जो एथलेट्स में काफी अच्छा कर रहे हैं, अब वो अपनी जवानी उसमें खपा देते हैं। 10-12 साल की उम्र से लेकर के 25-30 साल की उम्र तक पहुंचने तक ये लोग इतना तप करते हैं जी, तपते हैं, शरीर को तपाते हैं। खिलाड़ी ऐसा नहीं बनता है जी। और सुबह रात को नींद नहीं आती, सुबह 4 बजे उठ करके चले जाते हैं। अब कहते हैं नहीं ये माइनॉरिटी के लिए कोटा होगा, तो ये मेहनत करने वाला मेरा नौजवान जाएगा कहाँ जी, उनका क्या होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि देश में अब जो टेंडर होंगे उस टेंडर में भी वे माइनॉरिटी के लिए आरक्षण करेंगे। मतलब ये हुआ कि आज मान लीजिए कोई कहीं पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज में कौन ब्रिज बनाएगा, तो जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, जो परफॉर्म कर सकता है, सारे उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी करता है, उसमें कंपटीशन होती है और कंपटीशन में जो निकलता है उसको टेंडर मिलता है। ये कहते नहीं, ये सब बाद में। अब मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से सिर्फ धर्म के आधार पर कोटा दे देंगे, वो ब्रिज बनेगा, लोग मारे जाएंगे, तो कौन जिम्मेवार होगा। क्या वोट बैंक के लिए आप आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह करना चाहते हैं। तो ये ऐसे विषय थे जो कांग्रेस ने अपनी वोट बैंक की खातिर मैदान में उतारे।